हर इंसान हर फील्ड में कुछ ना कुछ एक्टिंग करता है। शर्मा जी आज हमें ये बताएंगे कि इंश्योरेंस सेलिंग इज आल्सो आर्ट एंड एक्टिंग और ए एजेंट हाउ टू एक्ट टू सेल ए इंश्योरेंस पॉलिसी। शर्मा जी ने बहुत सारे प्रोग्राम कोर्सेज कंडक्ट किए हैं, बहुत सारी कंपनियों में इन्होंने प्रोग्राम दिए हैं, जैसे BSNL, न्यू इंडिया मेडिकल एसोसिएशन, फिक्सर्ड, पूना, सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज, स्कूल, कॉलेज स्टूडेंट्स एंड ही इज एडवाइजर सो मेनी वेरियस ऑर्गेनाइजेशन। शर्मा जी ने पब्लिक की डिग्री नजरा स्टेट से ली है, दूसरे पॉलिसी डेवलपमेंट का कोर्स किया है। उसका बाकी इंट्रोडक्शन हमारे वाइस प्रेसिडेंट इमरान खान कर देंगे। दोस्तों, शर्मा जी ने जो वर्कशॉप किए हैं, मैं आपको एक विश्वास दिलाना चाहूँगा कि आज के प्रोग्राम में आप कुछ नया बन के ही निकलेंगे और ये मार्च का महीना आपके लिए एक नया आयाम देगा, इतना मुझे विश्वास है। शर्मा जी से बुलाने से पहले हमारे बीच एक और स्पीकर, हमारे अपने स्पीकर हैं श्री PK माली। उन्होंने हमारे लिए एक सीडी तैयार की है, जो एक साल के जो LIC के सर्कुलर आए हैं उन सबको उन्होंने इस सीडी में पिरोने की कोशिश की है। प्लस जो हमारे 2 नए प्लान अभी इंट्रोड्यूस हुए हैं, एक प्लान ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुका है अमूल्य जीवन, दूसरा तरंग जीवन अभी 17 मार्च को इंट्रोड्यूस होने जा रहा है, उसके बारे में अपने को बताएंगे। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, तब कहीं जाकर दीदारे उसके मन में होते हैं। Also, now I request our President Narendra Bhai Sahab to welcome with a bouquet of flowers to Sri Sharma ji. Now I request our Narendra Bhai Sahab to welcome Sri PK Mali. Now I request our Chairman of Seminar Committee, Sri Basant Agarwal, to introduce Sri PK Mali. Basant Agarwal, please. Thank you, Shanti, for giving me this opportunity of coming in front of you all and saying a few words. शर्मा जी साहब, नरेंद्र भाई जी, राजेश भाई, आप सभी लोग स्टेज पर हैं और अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए लेट मी कॉल ऑन द स्टेज श्री PK माली, बट बिफोर कॉलिंग हिम लेट मी इंट्रोड्यूस हिम टू यू। ऑल्दो मेरा ख्याल है कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ही इज वन अमॉन्ग्स्ट अस, वेरी वेल नोन पर्सनैलिटी और हम सभी लोग उनको काफ़ी सालों से बहुत अच्छी तरीके से जान रहे हैं। बट फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू अ फ्यू थिंग्स अबाउट हिम जो कि शायद हम में से बहुत लोगों को मालूम नहीं थी। फ्यू थिंग्स, हिज नेम इज मिस्टर प्रहलाद केशव माली and he is an agent from branch 881. He is 4 times MDRT and his education is very astonishing. He is an engineer. He is BE electrical. You might be surprised that as an engineer, how he comes into insurance selling business. But BE इलेक्ट्रिकल होने के बाद में उन्होंने डिप्लोमा इन टैक्सेशन किया, 2 डाइवर्स फील्ड्स। ही इज अ मास्टर इन engineering, he is a master in taxation aspect of life. Not only that, he also accomplished himself with a diploma in computer programming. So he is a very well-versed person with computers. He has got a mastery in computers, he has got mastery in selling insurance. So he becomes an asset for all of us to let us understand about the new plans, about the analysis of the plans, about the combinations of plans, and we have been listening to him for last so many years
whenever LIC was introducing new plans, he was always there to help all of us to understand that plan, to analyze it for us, to tell us about the USPs, unique selling points of the plan, to tell us about the good things of the plan, the bad things of the plan. So, friends, this is an opportunity for all of us. In his personal developmental inputs, he has done public speaking from Nazareth Speakers Academy, personality development from Apuresh Acharya, Director, Dale Carnegie Institutes, USA. He's done advanced selling skills from American teachers, mind mapping techniques from Tony Buzan Center, USA, neuro-linguistic programming techniques at US, self-hypnosis, handwriting techniques to transform personality from Bart Badgett's USA. He is accomplished trainer, hypnotherapist, behavioral therapist, and a success consultant. His powerful, fun-filled style injects tremendous enthusiasm, motivation, and confidence in the participants. Thousands of participants experienced great change in their lives and achieved their goals and higher success in their respective fields under his guidance. He's conducted courses and seminars and workshops. The list is pretty long, but I would like to read some portions of it. Self-transformation courses for various levels, professionals all over India, for Department of Telecommunications, actors and models in #1 Acting Institute in Juhu, Mumbai, LIC development officers and agents, New India Assurance, schools and college students, Medical Association, IFSAT Pune. He is also an advisor to various organizations. For corporates, he trains in communication skills, interpersonal relationship skills, stress management, personality development, selling skills to enhance productivity, telemarketing. And he conducts workshops on miracles of positive thinking, attitudinal self-transformation workshops, confidence building and motivation seminars, and of course, key to a very happy married life. I now invite Dr. Sushil Sharma to teach us acting in insurance sector. Can you hear me? Last seats? Hello? Hello? हाँ सुनाई देता है आपको? I've been introduced very highly by Alika. अलिका का मेरा संबंध कुछ साल पहले होते होते रह गया था. I am grateful for them that they have called me today. 3-4 साल पहले मेरा एक प्रोग्राम था आपका, जिसमें it was a big program and I was invited for, but unfortunately I was not well and then the program has to be cancelled. But then it was a part of the program, full day program. लेकिन वो जो प्रेम है, प्रेम में इतनी ताकत होती है दोस्तों. प्रेम यदि पक्का है और स्ट्रांग है तो एक ना एक दिन आपको जरूर मिला देगा. और मैं आज मुझे खुशी हो रही है कि मैं वापस अलिका के साथ आज आपके सामने, मुझे आपके सामने मैं आज हाजिर हो गया हूँ. एंड आई रियली थैंक बरागरा साहब, शाह साहब, उन्होंने मुझे बुलाया. दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये पूछना चाहूंगा कि यू वांट दिस प्रोग्राम इन विच लैंग्वेज? हिंदी. वंडरफुल. अच्छा, आई वांट टू नो हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड. अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू डोंट अंडरस्टैंड हिंदी? कम ऑन, रेज योर फिंगर्स. Who don't know Hindi? Okay.
बहुत बार हो जाता है भाई, इसलिए एक्सपीरियंस के बाद की बात है। सर आप लोग आ रहे हैं आगे ना कम फर्स्ट ऑफ ऑल सी बीइंग ए डॉक्टर, मैं डॉक्टर हूँ खुद। डॉक्टर के पास लोग आते हैं कि डॉक्टर मुझे मार्च का महीना है, कुछ ताकत के लिए भी दवा दीजिए। और डॉक्टर एलआईसी एजेंट्स को ताकत की दवा देता है, जिससे कि वो जोर जोर से काम करते हैं, मेहनत से काम करते हैं, अपने टारगेट्स प्राप्त करते हैं। लेकिन डॉक्टर है, उसको भी ताकत की जरूरत पड़ती है, उसको ताकत आप लोग देते हैं, मुझे भी ताकत की जरूरत है। जैसे हार्ट है, हार्ट पूरे शरीर को खून देता है, लेकिन हार्ट को भी वो कॉर्नरी आर्टरी रखती है जो कि ब्लड सप्लाई करती है। सब मुझे जरा लेट मी सी, आप मुझे कितना पावर दे सकते हैं कि मुझे समय मिला है। आई कैन वर्क अप टू फाइनली 5:30. They will decide. They will decide. Okay. That's right. They can drag me anytime. You have got all the right to drag me and throw. Yeah. उठा के फेंक सकते हैं आप यहाँ से भी, नो प्रॉब्लम। एसी में बिठाया है, हाँ जी? एसी में बिठाया है बंद कर। So, दोस्तों मैं देखता हूँ आप लोग मुझे कितना ताकत हो। 2 बिस्किट तो मेरे खत्म हो गया। So let me see, क्या आप पावर दे सकते हैं मुझे जरा रिप्लाई चाहिए आप लोगों से। मुझे मेरे नमस्कार का रिप्लाई दीजिए आप। नमस्कार। वेरी गुड, वेरी पावरफुल। लेकिन इससे मैं सिर्फ आधा घंटा काम कर सकता हूँ। Yes, I got energy only for half an hour. यदि आप मेरा और कार्यक्रम आगे सुनना चाहते हैं तो गिव मी रिप्लाई ऑफ माय नमस्कार। वंडरफुल, ग्रेट। करीब करीब क्लाइमेक्स तक पहुंच जाऊंगा, नहीं क्लाइमेक्स नहीं हो पाएगा। तो लेट मी सी द लास्ट वन। नमस्कार। वंडरफुल, नाउ आई एम रेडी फ्रेंड्स। मैं आप लोगों के लिए पूरी तरह से तैयार हूं और आप लोग आज बहुत सारे उम्मीदें लगा के आए होंगे क्योंकि आपने पढ़ लिया एक्टर, डॉक्टर, एक्टर, मोटिवेटर। तो इस वक्त हमें लास्ट की चीजें तो हमने बहुत की हैं, सुनी भी हैं। सवाल आता है, डॉक्टर भी बहुत सुना है, बहुत बार गए हम लोग, हमने एक्सपीरियंस भी लिया है, वो बीच का एक्टर कहाँ से आज आ गया। तो दोस्तों मैं कुछ नया सिखाने आया है, नहीं आपको नहीं लगता हम लोग सब एक्टिंग करते हैं? रियल लाइफ में हम लोग डॉक्टर इज एक्टर, यू आर एक्टर्स। मैं तो सिर्फ एक काम करने आया हूं। बीच में टाइम्स ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा लेख था, उसमें लिखा हुआ था आज कॉर्पोरेट कंपनीज किसी को भी कितना भी पैसा देने को तैयार हैं जो कि उनके वर्कर्स के दिमाग को क्लियर कर सके। यदि माइंड इज क्लियर तो ऑटोमेटिक आइडियाज डेवलप होंगी। वो कहते हैं एक्टिंग, कहते हैं ना अंदर से एक्टिंग निकलनी चाहिए, अंदर से, दिखावटी नहीं, अंदर से आनी चाहिए। तो वो तभी हो सकता है जब ये यहाँ पर शांत है। दोस्तों मैंने 32 साल काम किया है, प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैं सिर्फ एक ध्यान दिया मैंने कि माइंड इज अ बिगर प्लेस। टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा है क्लियरली, कॉर्पोरेट्स हैव रियलाइज्ड द बिगेस्ट एसेट ऑफ द कंपनी is not software, it is not music, but it is brain, intellectual intelligence। सबसे बड़ी तो जितना हम क्रिएटिव काम कर सकेंगे, जितना नई नई आइडियाज पैदा कर सकेंगे, we will be able to think better, create better ideas and create better expressions and क्रिएट बेटर टेक्निक्स, जिससे कि हम अपनी पॉलिसीज को, अपने बिजनेस जो भी काम करें, बिजनेस को बढ़ा सकें। दैट्स व्हाट आई एम हियर फॉर। सो दोस्तों मेरे प्रोग्राम में जब तक मैं ये हार्ड डिस्क को साफ नहीं कर देता मैं आगे नहीं बढ़ता, मेरा नियम। हम बच्चे थे, अब बताइए जब हम बच्चे थे तब ऐसे थे? नहीं थे। हम 3 साल के थे। अच्छा एक चीज में टेंशन नहीं आप लोगों को, मेरे प्रोग्राम में पहले मैं डिक्लेयर कर देता हूं कि प्लीज 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 कीप योर मोबाइल्स ऑफ, नहीं ऑन, प्लीज कीप योर मोबाइल्स ऑन
और यदि कोई फोन आ जाए तो आप जाके आंसर कीजिए, आई हैव नो प्रॉब्लम। कॉल आ जाए तो जाइए, आंसर करके आइए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन मेरा एक एक फॉर्मूला आपको 1 करोड़ रुपया कमा के दे सकता है। यदि एक फॉर्मूला चला गया, प्लीज डोंट ब्लेम मी, मुझे दोष नहीं देना। सो प्लीज 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 कीप योर मोबाइल ऑफ। ओके, थैंक यू। सो जब हम 3 साल के थे तब हम ऐसे नहीं थे। जब हम 3 साल के थे तब हम हंसते थे, हम चाहे जहां मार्केट में गए तो रो सकते थे। कभी कोई हवाई जहाज आता था तो हम कहते पापा पापा हवाई जहाज चाहिए। आज बोल के देखो किसको, आज बोलो मेरे को हवाई जहाज चाहिए। लेकिन तब हम बोल सकते थे कि क्या गड़बड़ क्या होगी, लेकिन कहाँ गड़बड़ होगी? गड़बड़ ये हो गई कि ये जो कंप्यूटर ये चलाने के लिए हम लोग छोटी सी ट्रेनिंग ले लेते हैं, बेसिक कंप्यूटर कोर्स, और इसको ऑपरेट करते हैं। लेकिन हमारा जो ये कंप्यूटर है, जो कि सबसे बड़ा कंप्यूटर है, आई कॉल इट सुप्रीम कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर भी नहीं, सुप्रीम कंप्यूटर। इस कंप्यूटर को जो आया वो उंगली से प्रोग्राम करके चलाएंगे। जब हम हंसते थे तो पापा बोलते थे मेरा बेटा मेरा बेटा, और रोने लगे तो बोले जा संभाल इसको, तेरी मम्मी के पास है उसका बेटा। हंसता है तो मेरा बेटा, रोता है तो मम्मी का बेटा, सीधा अपोजिट प्रोग्राम है। पापा ने झापड़ रख दिया, हम दादी के पास जाते, दादी बोलती थी आने दे उसको, शाम को मैं मारूंगी। उसको समझता है कि हो क्या रहा है एक्चुअली। तो कुछ भी प्रोग्रामिंग होती गई, दोस्तों ने कुछ कर दी, सोसाइटी ने कुछ कर दी, काम कर गए हम, एनवायरनमेंट ने कुछ कर दी, और होते 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 आज क्या हो गया, हम चाहे तो खुल के हंस भी नहीं सकते, चाहे तो हम खुल के रो भी नहीं सकते, और चाहे तो बड़े टारगेट्स बनाने के टाइम पे भी हमको थोड़ा सा हिचक झिझक जो भी है वो सब प्रॉब्लम्स आ जाती है। दोस्तों आज का मेरा काम, सबसे पहला काम यही है, ये एक्टर के लिए सबसे बड़ी चीज होती है, जब आई एम ट्रेन फ्रॉम, मुझे ट्रेनिंग मिली है बॉम्बे के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट से, किशोर नंदित कपूर एक्टिंग क्लासेस से मैंने ट्रेनिंग ली है। एक चीज बता दूं, वो ऋतिक रोशन जो है मेरा सीनियर है, मेरा सीनियर। मैंने ट्रेनिंग अभी ली 97 में, मेरा कंसल्टिंग के लिए मैं जाता था, मेरा क्लिनिक था वहाँ, उसके बाजू में एक एक्टिंग क्लास था। तो मैंने मिसेज से कहा कि 6 महीना में आता तो हूँ थाना से यहाँ पे, तो सुबह का संभाल लो तो मैं एक्टिंग कोर्स कर लेता हूँ। 92 में वैसे ही फिल्म कर चुका था मैं, तो मैंने वो कर लिया। राहुल देव मेरा क्लासमेट था, लेकिन उस एक्टिंग का किया क्या मैं, लोग आप बोलेंगे फिर है किधर, आप देखे तो नहीं, आप लोग सोचेंगे सीधा। जी हाँ, मैंने एड फिल्म में काम किया, लेकिन मेरे बच्चे, दोनों बच्चे डॉक्टर हो रहे थे, इसलिए मैंने उस समय एक ब्रेक ले लिया 2 साल का बीच में, इसलिए उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाई दे दिया। अगेन आई स्टार्टेड माय प्रोग्राम्स। देखो एक्टिंग का किया क्या मैंने, उस एक्टिंग के जो प्रिंसिपल्स थे उनको मैंने लोगों को निर्माण करने में इस्तेमाल किया, जिससे कि हम, आप सब जन समाज में जहां भी जाते हैं, सी वन थिंग वी हैव टू बी वेरी क्लियर हियर, दिमाग में हम क्लियर हैं तो आइडिया, कस्टमर कुछ भी बोला तो भी आइडिया आ जाएगी नहीं, उसको ये बोलने दो ये आइडिया आएगी, ये बोला तो इसका उत्तर तैयार रहेगा अपने पास, ज्यादा टेंशन नहीं, नफा नहीं, क्रिएटिव ब्रेन हो जाएगा। सो वी वांट टू बी क्रिएटिव, सो आई यूज्ड एवरीथिंग, हर चीज को इस्तेमाल किया जिससे कि हमारे माइंड पावर को हम बढ़ा सकें, नंबर 1, नंबर 2 हम अपने क्रिएटिव आइडियाज पैदा कर सकें, नंबर 3 हम बड़े से बड़े सपने देख सकें, नंबर 4 बड़े से बड़े सपने हम प्राप्त कर सकें। और इसी बीच में मेरा एक्टिंग का सिलसिला मैंने जोड़ दिया है, कड़ी हूँ। अब आप बोलेंगे अब कितने बजे एक्टिंग का सिखाएंगे आप, स्टार्टिंग में, बीच में कि आखिर में? तो दोस्तों ये पूरा प्रोग्राम के अंदर ही सब आ जाएगा। सो दिस प्रोग्राम इज बेसिकली आई स्टार्ट विद, अच्छा आप लोगों में से कितने लोगों ने मेरा प्रोग्राम अटेंड किया पहले कभी? कहाँ पर? याद नहीं आ रहा है, मेरे ख्याल से ब्रांच में।
ब्रांच में। कहाँ फोर्थ में? ओके, एडी राजीव है ना? ठीक है। वहाँ पर मैं 10-12 ब्रांचेस में गया था। या तो ठीक है, आई विल बी एबल टू प्रेजेंट दिस प्रोग्राम फ्रेशली। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को वेलकम करता हूँ आज के इस प्रोग्राम के लिए। इसके ऊपर नेक्स्ट करना है, एंटर चिट्ठी पर एंटर करना। आज का प्रोग्राम जो है इसको फास्ट सब इंट्रोडक्शन हो चुका है। ये मेरा इंट्रोडक्शन हो चुका है ऑलरेडी, इसलिए मैं तो आज का प्रोग्राम जो हमने रखा है वो प्रोग्राम है, उसका नाम ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन। क्या आप चाहते हैं कि हम जो कुछ आज हैं इससे कुछ और आगे अलग ढंग के बदल के जाए हमसे? टुडे इटसेल्फ, आज के लिए बचे हुए समय में हमको इस साल भी और आगे भी कुछ कर दिखाना है, बड़ी से बड़ी चीजें कर दिखानी है। तो हम जो कार्यक्रम ले रहे हैं, इस कार्यक्रम का नाम है ट्रांसफॉर्मेशन। और ये कार्यक्रम क्या करेगा? इज अ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग वर्कशॉप बेसिकली। और इस कार्यक्रम में क्या होगा? इट्स अ रेवोल्यूशनरी वर्कशॉप विच इज गोइंग टू मेक यू पावरफुल, मोर पॉजिटिव, कॉन्फिडेंट, एंड इट इज गोइंग टू मेक यू फ्री फ्रॉम टेंशन, वरीज, fears, inferiority complex and lack of confidence. Next please. So, एक चीज जरूर आप लोगों को पता लग गई होगी आज तक कि can you sell LIC policies without making good relations? No. You can never. I remember मैं उनके लिए उपसर्ग के लिए भी काम किया था, गुरुकुल जीवन के लिए भी काम किया था। तो उनके प्रेसिडेंट ने कहा कि डॉक्टर, इतने साल की जिंदगी मैंने जो प्रैक्टिस की है यहाँ पर LIC में, मुझे एक चीज समझ गई कि बिना आप ये रिलेशन के वी कैन नेवर सेल। आप कुछ भी सीख जाए, कुछ भी फंडामेंटल सीख लीजिए, आप कितने ब्ला 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 बिग वर्ड्स, बट अनलेस यू डेवलप गुड रिलेशंस विद द कस्टमर यू कैन नेवर सेल। सो आई गिव लॉट ऑफ वैल्यू टू दिस रिलेशनशिप। नेक्स्ट प्लीज। What is relationship? मैंने रिलेशनशिप को 3 भाग में बांट दिया है। रिलेशनशिप, रिले का मतलब है हम अपनी जो बातें प्रेषित करते हैं। टीवी प्रोग्राम है, वहां से यदि सही रिले हो रहा है, टीवी पर प्रोग्राम कैसा आएगा? क्लियर है। यदि यहाँ पर प्रोग्राम में गड़बड़ हो गई टीवी प्रोग्राम स्टेशन पर, तो क्या लिखा हुआ होगा वहां पर? सॉरी फॉर इंटरप्शन, रुकावट के लिए खेद है। सही है? तो सब बोलने के बाद क्लाइंट वाले को समझा ही नहीं। या तो टीवी स्टेशन, व्हाट आई मीन इज रिले इज अ रिले, वी आर रिलेइंग अपने विचारों को, अपनी बातों को, अपने सब्जेक्ट को, अपने कॉन्सेप्ट को, अपनी पॉलिसी के बारे में हम रिले कर रहे हैं। और स्टेशन वो कौन है? क्लाइंट। यदि हम सही ढंग से रिले करते हैं और यहाँ पर सही ढंग से उन चीजों को कैच किया जाता है, तो बेनिफिट कितना होगा? फायदा डब्बा भर के होगा, थैली भर के होगा, कितना होगा? जहाज भर के। If you are able to relay properly and if the client catches properly, the benefits are जहाज भर के। You want or not? That's right. Next please. Friends, सबसे बड़ा, you tell me one thing. I want to know who has no problem. हाथ ऊपर कीजिए please. Who has no problem? Come on. Everyone has problems. One person doesn't have problem, you know that? One who is in the grave. जो कब्र में गड़ा है उसको लड़ाई नहीं। हाँ? अभी इसको हाँ हिंदी काटेगी तो उन्हें चिल्लाएगा तो नहीं आएगा। So one who is in the grave has no problem.
यदि हमको प्रॉब्लम्स है इसका मतलब हम जिंदा। और जितने ज्यादा प्रॉब्लम उतने ज्यादा जिंदा है। मेरे पास एक पेशेंट है, मेरे पास बोले डॉक्टर साहब लास्ट ईयर में आपके पास आया, आपने मेरा हाथ देखा, आपने मुझसे सब बात किया और मेरे को बोला कि आप चिंता नहीं करो, नेक्स्ट ईयर तुम्हारा सब प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे। डॉक्टर साहब ऐसा तो प्रॉब्लम बढ़ गए। अरे मैं बोला कॉन्ग्रेचुलेशन, मैं हाथ मिला के बोला कॉन्ग्रेचुलेशन। बोलते क्या बात करते डॉक्टर आप, मेरा मुसीबत में, तो आप बोले कॉन्ग्रेचुलेशन। मैं बोला आप भगवान की पूरी नजर तेरे ऊपर आ गई, उसे प्रॉब्लम दे दी, इसका मतलब भगवान की पूरी नजर तेरे ऊपर आ गई। यदि हमारी गाड़ी चोरी नहीं होती तो अपने आप को शाना नहीं समझने का, तो चोर की नजर नहीं पड़ी गाड़ी पे, और जिस चोर की नजर पड़ गई गाड़ी, यदि हमारे घर के बाहर बार बार चोरी होती है इसका मतलब चोर की नजर हमारे घर पे पड़ चुकी है। यदि हमको बार बार प्रॉब्लम आती है, बहुत सारे प्रॉब्लम है, इसका मतलब भगवान की नजर हमारे ऊपर पड़ चुकी है। जिस दिन सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाए वही है खतरे की घंटी। जिस दिन एक भी प्रॉब्लम ना हो अपने पास, उसी दिन सुबह जल्दी उठना, उठ के 5 बजे जल्दी उठना, तैयारी करके मंदिर में जाना, मस्जिद में जाना, जहां भी आप पूजा करते हो वहां जाइए और जाके भगवान के पैर में अपना सिर डाल दीजिए और पूछिए भगवान से, हे भगवान क्या तुम्हारा विश्वास मेरे ऊपर से उठ गया? क्या तुम्हारा विश्वास मेरे ऊपर से उठ गया? मेरे सारे प्रॉब्लम खत्म कर दिए, मेरे दिन भर गए। क्या मेरे दिन भर गए? इसके लिए यदि अपने को प्रॉब्लम्स हैं फ्रेंड्स, चिंता नहीं करना। हम लोग बोलते हैं कि सर कर तो बहुत कुछ सकता हूँ, मार्च में क्या आसमान भी छू के दिखा सकता हूँ, एक लफड़ा है सर, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम मेरे पास। मैं बोलता हूँ कॉन्ग्रेचुलेशन, कोई नया प्रॉब्लम ऐड हो जाए उस दिन कॉन्ग्रेचुलेशन बोल दो, काम पे निकल जाना बिंदास, कुछ भी करके आ जाएंगे आप। नेक्स्ट प्लीज। So, friends, forget about problems. Now, tell me one thing. हमारे शोकेस के अंदर क्या रखते हैं हम लोग? अब गलती है उसने लफा के इसने एंटर कर लिया इसलिए। नॉर्मली हम लोग शो पीसेस रखते हैं, बाई चांस में वहां पे गोबर रख दिया तो क्या होगा? नेक्स्ट, क्या हम मुस्कुरा सकेंगे? कैन वी स्माइल? कैन वी ईट दैट? क्या हम वहां पर पूजा कर सकेंगे, प्लानिंग कर सकेंगे, एक्टिव फील होगा, हेल्दी फील होगा, हम लोग सो सकेंगे वहां पे? कुछ नहीं कर सकते। और यदि हम इस गोबर को निकाल देते हैं, गोबर का मतलब क्या है? जो भी गंदगी रखी हो, गोबर हो सकता है, कचरा हो सकता है, उस गोबर को निकाल के यदि नेक्स्ट प्लीज वहां पर हम गुलाब के फूल रख देते हैं तो हम ये सब कर सकेंगे? यस। दोस्तों ये गोबर शोकेस में था, यदि ये गोबर यहां आ गया तो क्या सब नो हो जाए? Isn't it? मैं गोबर का मतलब क्या कहता हूं? गोबर मीन्स टेंशंस, वरीज, गुस्सा, फियर, गिल्ट कॉम्प्लेक्स, जो भी ये चीजें हैं, इन सबको मैं इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, जेलसी, ये सब चीजों को मैं गोबर बोलता हूं। इसमें से एक भी चीज हो या अनेक हो तो हम लोग काम नहीं कर सकते। सही है ना? आ जाओ तुम्हारे, ठीक है, आ जाइए, आप ही आ जाइए, कब Praveen, that's wonderful. Praveen has really participated here. He has come here. Give me a big hand, please. Now, Praveen. उसको मालूम पिस्तौल नहीं है, उसको मालूम है पिस्तौल नहीं है। यदि असली पिस्तौल होती या सच्ची में तो स्माइल कर सकता था। आपको मालूम है खिलौने की पिस्तौल से भारत में जहाज हाईजैक कर लिया गया, हवाई जहाज हाईजैक हो चुका है भारत में, उसे डर से, है ना? He could smile because he knows there was nothing there. So, but if there is a tension,
if there is a worry, if there is a target की चिंता, anything, jealousy, guilt, कुछ भी, तो we will not be able to smile. You agree with? Any doubt? Okay, thank you very much. Next please. तो आज के जो वर्कशॉप में सबसे पहले मैं जो करता हूँ, I just remove this over first. Again problem. ये प्रॉब्लम पीछा नहीं छोड़ दिया. Next please. Let me tell you, 32 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ. ये 32 साल में मैंने एक चीज सीखी है कि जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं या टेंशन्स होते हैं या बीमारियां होती हैं, जो भी 70% आर बिकॉज ऑफ माइंड, 20% आर बिकॉज ऑफ फूड, 10% आर द ओरिजिनल वंस. 70% माइंड की, मन की वजह से होती है, 20% फूड की वजह से होती है. अरे अपन ये दो को कंट्रोल कर लिया तो रामदेव बाबा ने इसके ऊपर तो कर दिया सब मामला. कंपनियां बंद क्यों, वो टेंशन क्यों ले रहे हैं? फार्मास्यूटिकल कंपनीज टेंशन इसीलिए ले रही है कि हम मर जाएंगे, कि उन्होंने एक पकड़ लिया इस चीज को. बहुत अच्छा पकड़ा. वेरी नाइस. सो नेक्स्ट प्लीज. अगेन इस दुनिया को, इस समाज को लोगों ने दो भाग में बांट दिया. लोगों ने धर्म से बांट दिया, लोगों ने भाषा से बांट दिया, लोगों ने किसी को नॉर्थ इंडियन, किसी को साउथ इंडियन, किसी को बिहार वाला, किसी को यूपी वाला, किसी को. मैंने इन लोगों को सिर्फ दो भाग में बांटा है, एंड दैट इज हैप्पी पर्सन एंड अनहैप्पी पर्सन. लोग दो तरह के होते हैं, एक तो सुखी इंसान और एक दुखी इंसान. सो आप यू वांट टू बी दुखी इंसान और सुखी इंसान? हाँ जी, सुखी इंसान. यू वांट टू बी हैप्पी पर्सन. One thing I want to tell you, that whatever happens in life, जिंदगी में जो कुछ होता है वो 90% अच्छा ही होता है. 90% अच्छा ही होता है, 10% ही खराब होता है, या हमें पसंद नहीं वैसा होता है, या अनवांटेड होता है, whatever it is. But 90% it is good. जो लोग 90% पे ध्यान केंद्रित करते हैं, they are the people who are happy persons, and they neglect 10%. Total 10% पे ध्यान नहीं देते. They are what kind of persons? Happy persons, सुखी इंसान. और जो लोग पूरा ध्यान 10% पे देते हैं, they are unhappy persons. तो 90% सब कुछ अच्छा है यार, वो 10% थोड़ा सा प्रॉब्लम, वो पूरा ध्यान उसके ऊपर ही, दे बिकम अनहैप्पी. हम ये 2 मिनट में अनहैप्पी पर्सन कौन से देख लेते हैं. नेक्स्ट प्लीज. ये हमारे अनहैप्पी पर्सन. इन लोगों को एसिडिटी की तकलीफ बहुत होती है, हाइपर एसिडिटी. मुझे ये बताइए, डाइजेन किस किस को मालूम है? जरा हाथ ऊपर करके बताइए. डाइजेन गुड नंबर. क्यों भाई? आइदर हमको एसिडिटी होती है या हम किसी के लिए गोली लाके देते हैं. दैट मीन्स एसिडिटी इज सो कॉमन. यू एग्री? एसिडिटी इज वेरी कॉमन और एवरी ऑल्टरनेट पर्सन हैज एसिडिटी. इन लोगों को ब्लड प्रेशर की तकलीफ, डायबिटीज, नींद की तकलीफ, इंडाइजेशन की तकलीफ, कान का इंडाइजेशन, गैस की तकलीफ. ये देखिए, गुजरात लोग बहुत होशियार होते हैं, ये बात पक्की है. तो पूरा इंडिया जानता है, समाज जानता है, सब जानता है. एक जामनगर के व्यापारी ने बस यही पकड़ लिया. मेरा लेक्चर हो गया, मेरे पहले का किसी का, मेरे दादा का लेक्चर होगा, किसी का, मेरे बड़े दोस्त का होगा. उसने देख लिया ये कायम का प्रॉब्लम, तो उसने भी चूर्ण बना दिया. कायम चूर्ण, भावनगर. कायम प्रॉब्लम और कायम कभी बंद होने वाला नहीं. These are the people जिनको चमड़ी की बीमारियां होती हैं, स्किन डिजीज. हम लोग बहुत टेंशन लेते हैं, कुछ क्या खो गया, ये कहाँ रख दिया, तो भी देखिए हम कहीं तो खुजाते हैं ना. मन का और चमड़ी का बहुत संबंध है, क्लोज संबंध है. इन लोगों को हार्ट की तकलीफ, एलर्जी की तकलीफ, सर्दी खांसी. दही खा लिया सर्दी हो गई, हवा बदल गई सर्दी हो गई, आइसक्रीम खा ली सर्दी हो गई.
इसने कुछ बोल दिया खोपड़ी सटक गई, उसने कुछ बोल दिया दिमाग खराब हो गया, इसको मैं एलर्जी बोलता हूँ। This also is allergy. These people get heart trouble, these people can get joint problems. दोस्तों, मेरा बदनसीब है, वाजपेयी साहब मेरे पास क्यों नहीं आए? उनके घुटने बचा देता हूं पक्का। अब देखिए, पानी पूरी का विचार है तो मुंह में क्या होता है? पानी आ जाता है। हम बहुत टेंशन लेते हैं, यहाँ पे एसिडिटी हो जाती है। हम नाच रहे हैं, पार्टी में मजा कर रहे हैं, धमाल कर रहे हैं, कोई आके कान में बुरी बात बताता है तो हमारे तो हाथ पैर ही ढीले हो जाते हैं। वाजपेयी जी जब गद्दी पे बैठे थे तभी इतना टेंशन तो नहीं था, तो ठीक चलते थे जरा। लेकिन 3 साल जो उनको खींचा ममता समता ललिता ने, तो 3 साल में उनके घुटने दोनों घुटने चले गए। सो जोड़ों की तकलीफ होती है, टेंशन, वरीज एंड इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा होता है। ये हमारे दोस्त हैं दुखी इंसान। ये टॉपिक जरा थोड़ा सा डेप्थ वाला, इसके बाद मजा आएगा, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हर इंसान के लिए जरूरी, इसके लिए इसको देता है। इन लोगों की फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होती है। ये कौन से इंसान है? अनहैप्पी पर्सन। इनकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब, किट पिट घर में चालू रहती है। इन लोगों को टायर्ड फीलिंग, ये लोगों को चाल बता देती है, चलते ही है उससे पता चल जाता है। टायर्ड पर्सन, दे आर टायर्ड ऑल द टाइम। इनको इनसिक्योरिटी अक्सर लगती है, बहुत इनसिक्योरिटी। ऐसा हो गया तो, ऐसा हुआ तो, नहीं हुआ तो, जाऊं तो, नहीं जाऊं तो, वो वहां से बालकनी के अंदर सुनील की मम्मी खड़ी है, वहां से अनिल की मम्मी को पूछती है दूसरी बिल्डिंग में, अरे अनिल की माँ, तो तुम्हारा अनिल आ गया क्या? बोले नहीं आया। अरे बाप रे, मेरा भी सुनील नहीं आया। और इधर से उधर घूमती है, इधर से टेंशन में पापा 2 मिनट में आती पूछती है, अरे अनिल की माँ, वो तुम्हारा सुनील आया क्या? अनिल आया क्या? बोले नहीं आया। फिर तो भगवान का पूजा करके जो भी चढ़ाने का सब आगे का 2-4 उपवास बोल के आती है, फिर लौट के आते हैं। दिस इज इनसिक्योरिटी काइंड ऑफ इनसिक्योरिटी। और हस्बैंड आधा घंटा आजकल लेट हो गया तो और भी वाट लग जाती है। रात के 3 सीरियल ने बहुत नुकसान करते हैं हम पुअर हस्बैंड्स का। सो इनसिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी जो है इन लोगों में बहुत होती है। लोनलीनेस, इन लोगों में अकेलापन। वो दुनिया में है, समाज में, पब्लिक में, गर्दी में है, लेकिन उनको फिर भी अपना अकेला, अपना बेटे एक साइड में। सॉरी, मेरी बॉडी लगे जो ऐसे बैठे बैठना मिलता। हाँ, वो अपना खाने के टाइम पे, बुफे के टाइम प्लेट ले एक साइड में बैठ जाएं, किससे मिक्स नहीं होंगे, बात नहीं करेंगे। मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि वी हैव टू बी ईच वन ऑफ अस। हम लोगों में हर एक को इतना ये होना है कि वी हैव टू, हर एक का चक्कर लगाना है। हमारे तो जो जितने भी लोग हैं वो सब हमारे भगवान है। हम भगवान की परिक्रमा करते हैं ना, हम जितने लोगों को पहचानेंगे, जितने उस पार्टी में पहचानेंगे, उतना हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो मैं एक्टिव में डालूंगा। इन लोगों को हेट्रेड, घृणा, हर चीज में कुछ न कुछ निकालेंगे वो लोग। मेरे जैसा एक हस्बैंड, बेचारा हस्बैंड, तो 10 साल में पहली बार बीवी का जन्मदिन याद आया। लोगों से बहुत जन का होता है, ऐसे होता है ना। 10 साल में पहली बार बीवी का जन्मदिन याद आया और हाफ डे करके सीधा दुकान में गए। ये दुकान में गया, वो दुकान में गया, 10 दुकान में गया, एक बढ़िया सी साड़ी जो पसंद आई वो ले ली और साड़ी लेके सीधा घर पर पहुंचते, खुश मूड में। आज 10 साल में फर्स्ट टाइम आज कुछ प्रेजेंट दे रहे, वेरी हैप्पी। वो घंटी बजाते हैं और खुश होके एकदम आज मजा आने वाला है, फर्स्ट टाइम प्रेजेंट करते हैं। बीवी दरवाजा खोलते हैं और हम बोले खुश, और हम बोलते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू। बीवी को देते, बीवी बोलती शी क्या कलर लेके आए तुम। सेंस नहीं तुमको। तो देखा मेरे मायके वाले, मेरा भाई कैसा कलर लाता है, बेचारा हस्बैंड। इसके बाद फिर जन्मदिन याद रखे। घृणा, हर एक चीज में घृणा। ऐसे हस्बैंड भी करते हैं, दोनों साइड। हाँ भाई, इसको पलट देना, जहाँ बाई चांस में ले लूं, हस्बैंड पे ले लूं तो उधर दोनों तरफ कर देना। जेलसी, इन लोगों की जेलसी बहुत होती है। किसी ने कुछ ले लिया, इसने ज्यादा काम कर लिया तो ये फिर जेलस है। इनको गुस्सा बहुत आता है, इनको डर बहुत लगता है। अनहैप्पी पीपल,
इनके घर में सेक्सुअल प्रॉब्लम्स ज्यादा रहती हैं। नहीं, सेक्स डॉक्टर्स को बहुत, इनसे बहुत जलता हूँ। कारण ये है, जलने का कारण बता देता हूँ, क्योंकि मैं भी उसमें अनहैप्पी हो जाता हूँ, अनहैप्पी पर्सन, जेलसी की वजह से। हम डॉक्टर, हमने समझो 10 रुपया ज्यादा लिया, 50 का 60 कर दिया, 100 का 120 ले लिया, तो लोग पूछते हैं मानुस की नहीं, काटता है, डॉक्टर काटता है। और इनके पास गया ना पेशेंट, हफ्ते देके आता है 2000 रुपया, 1000 रुपया, 3-3000 रुपया। कारण है वो बाहर आने का, किसको बताएगा, पूछेगा नहीं किधर गया था। हमारा तो बाहर आके पूछना, उतर गया, नहीं उतरा, वो काटता है डॉक्टर। सो दीज पीपल फील दे आर इन हेल। ये अनहैप्पी लोग होते हैं, इनको क्या लगता है इनकी जिंदगी एक नर्क बन चुकी है। इनको पूछे हाउ इज योर लाइफ यार, वो बोलते काय का लाइफ यार, कैसे नरक में जी रहा हूँ मैं जानता हूँ, कैसे नरक में जी रही हूँ मैं जानती हूँ, मेरे सिवा यहाँ कोई नहीं रह सकता। हर एक को लगता है, इन लोगों को लगता है, और जाते भी हैं, दे गो टुवर्ड्स पॉवर्टी, आइदर दे आर नॉट एबल टू अर्न, कमा नहीं सकते, या फिर उनका खर्चा बीमारियों में होता है। इसलिए इन लोगों को सब तरह की बीमारियां होती हैं और इनमें आत्मविश्वास बहुत कम होता है। और ये हैं हमारे दोस्त कौन से, अनहैप्पी पर्सन। और ये किस पे ध्यान देते हैं, 10% और 90% जो अच्छा है उसको निगलेक्ट कर जाते हैं। अब हम देखते हैं हमारे दूसरे दोस्त, लेना भाई, हैप्पी पर्सन। ये हमारे हैप्पी पर्सन जो ध्यान देते हैं 90% पे, और बाकी 10% को ध्यान देना यार। इनको पूछो, hey, how's your health? बोलता फिट एंड फाइन, टनाटन, टकाटक। इनकी लैंग्वेज ही अलग होती है। इनको these are enthusiastic। इनको बोलो चलने का, क्या बोलो, लेक्चर में जाने का, चलता क्या चल, और दूसरे को बोलो चलता क्या लेक्चर, क्या सैटरडे यार, हाफ डे यार, जरा तो जा नेक्स्ट टाइम। एंथुसियास्टिक सब आगे खड़ा से, सैटरडे को कुछ भी हो पहुंच गए। With all happy people here. I'm very happy really to see you all here. And it's my word. जब आप लोग आए हैं यहाँ पे दोस्तों, ये मेरा शब्द है, यहाँ से जाएंगे तो आप परिवर्तन होके जाएंगे, आपका पूरा परिवर्तन हो चुकेगा। आप सोचेंगे कि हम वही थे, ये हो क्या गया, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस ज़्यादा आ गया, हमारा माइंड फ्री हो गया, अब हम लोग ज्यादा अच्छा काम कर सकते। That's my word. आप लोग मेहनत की है, सेवा करूंगा और मेवा दूंगा, मेवा मिलेगा आपको। आप सेवा करेंगे, मैंने सेवा, अब आप सेवा करेंगे, मैंने आपके बारे में सेवा करूंगा। जब मैं आपको तैयार कर दूंगा तो आप सेवा करेंगे तो मेवा किसको मिलेगा, तो ये लोग जो है उत्साही होते हैं, इनको कहते हैं उत्साह मूर्ति। ये ह्यूमरस, ये हंस सकते हैं, लोगों को हंसा सकते हैं। These are the people who go towards richness. Please, we are going to give a very small break for water after this. Please, wait. Please don't move, no one. इसके बाद में छोटा सा ब्रेक है, मामूली सा ब्रेक। ये लोग पैसा कमा सकते हैं। These are the happy people जो चाहिए उतना कमा सकते, कोई लिमिट नहीं होती इनके पास। These are the people who are very positive, सकारात्मक होते हैं। These are the people who are very powerful. These are the people जिनकी फैमिली लाइफ हैप्पी होती है। These are the people who are potent, समर्थ होते हैं, इनको बोलो वो काम करने को तैयार, कोई जिम्मेदारी, कोई टारगेट, कोई कैपेबिलिटी उनके अंदर भर के होता है। These are the people who are popular, ये प्रसिद्ध होते हैं। And these are the people who are friendly, ये लोगों से दोस्ती कर सकते हैं, लोग इनसे दोस्ती करते हैं, दोस्ती करना पसंद करते हैं। These are the people who are confident, इनमें आत्मविश्वास भरा होता है। And these are the people who are winners, यही होते हैं जो कि विजय श्री प्राप्त करते हैं। इसके लिए मैं एक फॉर्मूला मेरा तैयार है,
नेक्स्ट कर दीजिए, हाँ नेक्स्ट नेक्स्ट पेज। मेरा जादूगर आपके लिए फॉर्मूला लेके आया, लाइफ फॉर्मूला। Who is going to give you that life formula to make your life very happy? You want this or not? Yes. एक मैं आप लोगों को एक छोटा सा मामूली ब्रेक, जिनको पानी पीना है, ड्रिंक के लिए जाना, क्योंकि एक बहुत लंबी बैठक हो चुकी है। You can take break, but then come very fast, please. मेरा एक फॉर्मूला क्या सुखलाल, महासुखलाल, सबको महासुखलाल बना के भेजना है। मैं बोला ओके, मैं आपसे वादा करता हूँ, लेकिन महासुख बनने के लिए थोड़ी सी तपस्या करनी पड़ेगी। कृपया अपनी सीट पे बैठ जाइए लास्ट, अदरवाइज यही फॉर्मूला मेन है। इसमें से रह गया समझ में कुछ नहीं आया तो वो इतनी मेहनत सब चली जाएगी। तो कृपया टेक योर सीट्स। सो ये मेरा जादूगर आपके लिए फॉर्मूला लेके आया। ये जादूगर है जो फॉर्मूला दे रहा है, वो जिस तरह से हंस रहा है आप उसी तरह से जिंदगी में खुशियां मना सकते। इस फॉर्मूले का नाम है लाइफ फॉर्मूला 9:1। मेरे पास 12-15 साल के बाद भी लोग आते हैं, बोलते हैं डॉक्टर साहब कभी प्रॉब्लम आता है, टेंशन आता है ना, हम लोग आपका 9:1 यूज करते हैं और खट से टेंशन नहीं करते। So use this formula 9:1. Now what is 9:1? कि जीवन में जो कुछ भी होता है 9 अच्छा ही होता है, एक ही खराब होता है। अब आप बोलोगे क्या बकवास करते डॉक्टर, आप डॉक्टर होकर बात करते हैं ऐसे। मेरी जिंदगी में तो सब 100 का 100% खराब हुआ आज तक। मेरे पास आते लोग बोलते हैं जो बोल बच्चन के लिए डॉक्टर ये फॉर्मूला बहुत अच्छा है, तो खुद की जिंदगी में आता है ना तब पता चलता है। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट। डॉक्टर ये बोल बच्चन के लिए बहुत अच्छा फॉर्मूला है, देख खुद की लाइफ में जब आता है ना तब पता चलता है। तो दोस्तों बता दो कि खुद की लाइफ में मैंने किस तरह इस्तेमाल किया और लोगों की लाइफ में किस तरह इस्तेमाल किया। मेरे पिताजी अमरनाथ की यात्रा पर गए, वहां से वैष्णो देवी आए, पिताजी और माँ दोनों साथ थे। वहां से श्रीनगर में रहे, कश्मीर में रहे, और वहां से जम्मू आते वक्त बस के अंदर खिड़की के किनारे बैठे थे और एक जगह बस रुकी तो लोगों ने सो गए थे, तो उठाया किसी ने, शर्मा जी चलो उठो, तो शर्मा जी जा चुके। किसी तरह बस होटल तक गई, होटल से फोन करके यहाँ पे बॉम्बे फोन आया, हम लोग बॉम्बे में थे। उनका फोन आया कि मम्मी का फोन आया कि बेटा ऐसा हो गया, क्या करूँ मेरे को समझ में नहीं आ रहा। हमने कहा मम्मी चिंता नहीं करो, हम लोग आ रहे फौरन। हम लोग भगे एयरपोर्ट की तरफ, सीधा 3 बजे की फ्लाइट मिल गई हमको और हम लोग दिल्ली पहुंच गए। वहाँ से उनको खबर कर दी कि हम दिल्ली से आ रहे हैं। वो बोले आप आना नहीं, हमने तैयारी कर लिया, फ्लाइट अगली फ्लाइट से आपकी बॉडी वहाँ पहुँच, इनकी बॉडी पहुँच जाएगी, रिसीव। हम लोग परेशान, हमने मैटाडोर करके तैयार रखी थी रेडी। बॉडी आती है शाम को, मम्मी आती है, हम बच्चों के साथ को देख के कोलैप्स हो जाती है, उसको कंट्रोल करती है। किसी तरह मम्मी कंट्रोल करके बॉडी को लोग बॉडी इसमें गाड़ी में रख के हम लोग जा रहे हैं आगरा की तरफ। आगरा मेरी नेटिव प्लेस है, मैं आगरा में पैदा हुआ था, बॉम्बे में बड़ा हुआ। पिताजी से मेरा बहुत लगाव था, सब रो रहे हैं, मैं भी रो रहा हूँ। रोते रोते अचानक मेरे मन में एक बार ये विचार आया कि दुनिया को तो मैं सिखाता हूँ लाइफ फॉर्मूला 9:1, ये पक्का फॉर्मूला बोलता हूँ, यदि सच में पक्का है तो यहाँ पर भी लगना चाहिए ना। तो मैंने सोचना चालू किया और आप लोग भी सहमत होंगे, आप लोग भी इसको प्रूव करेंगे। मैंने सोचना स्टार्ट किया तो सबसे पहले मेरे मन में बात आई कि अब पिताजी तो चले गए, ये तो लौट तो सकते नहीं। नंबर 2, मैं ये 9 पॉइंट्स के ऊपर आया। पहली बात ऐसी होगी, मैंने सोचा कि पिताजी की डेथ हिमालय में हुई, अच्छा है बुरा, गुड और बैड। पिताजी की डेथ तीर्थ यात्रा करते समय हुई, गुड और बैड, गुड। पिताजी की डेथ बिना किसी पेन के हुई,
गुड। पिताजी की डेथ हुई उस समय मम्मी बाजू में बैठी हुई थी। गुड, आखिरी समय तक साथ में रहेगी। 3 में से 2 बच्चों को सेटल करके गए थे। मेरा भाई और मैं, हम दोनों डॉक्टर हैं। क्लिनिक स्टार्ट हो चुकी थी, शादी हो चुकी थी, बच्चे हो चुके थे, उनको देख के गए। गुड और बैड? नेक्स्ट पॉइंट, 3 में से 2 बहू आ चुकी थी लेकिन झगड़ा नहीं देखा था, सीरियल चालू नहीं हुए थे। तो रात के डिस्ट्रक्टिव सीरियल है, आप बुरा नहीं मानना लेडीज, हाँ, डिस्ट्रक्टिव सीरियल्स। मैंने देखा कि someone crying for months together, महीनों तक मैं रोते ही देखता था। सालों से बंद कर दिया देखना मैंने। हाँ, तो मैं बोला इधर शिफ्ट करो। Then I saw one more point कि my father जिस दिन डेथ हुई, he was a very happy person। मम्मी ने बताया कि उस दिन बहुत खुश थे, कश्मीर में घूमे, he was very happy। गुड और बैड? 8वां पॉइंट है कि उनका कंपनी रिकॉर्ड जो है, he was in railways। उन्होंने रेलवे में ड्राइवर के रूप में काम किया, मेल ड्राइवर, और बाद में ही बिकेम ऑफिसर। लेकिन उनके नाम पे एक भी एक्सीडेंट का रिकॉर्ड नहीं था। गुड और बैड? एंड लास्ट पॉइंट, उनकी डेड बॉडी जो है बर्थ प्लेस पे आ गई वापस। गुड और बैड? यदि बॉम्बे में डेथ होती तो हम आगरा नहीं ले जाते। डेथ वहां हुई इसलिए वहां से ऑटोमेटिक बॉडी देखी वहां पहुंच गई। जब मैंने ये सोचा तो ऑटोमेटिकली मेरे आंख के पानी जो है, आंख का पानी बंद हो गया। And I was quiet. I was very comfortable. Otherwise क्या होता है मालूम, बताऊं आपको स्टोरी। फरीदा मेरी एक पेशेंट है, वो मेरे पास आई। बोला बेटा क्या बात है, क्या तकलीफ है? बोले डॉक्टर साहब मेरे को सर्दी खांसी है। बोला ठीक है बैठो बेटा। पापा साहब उसको मैंने बोला और कैसा, सब ठीक ठाक बेटा? बोली नहीं अंकल, मैं कभी क्या सोच रही हूँ, मैं तलाक लेने की सोच रही हूँ। मैं बोला अभी 6 महीने पहले शादी हुई बेटा, तलाक ले लिया? हस्बैंड मारते हैं क्या? बोलते नहीं, मतलब ऐसे बहुत प्रेम करते हैं। तो बोला क्या बात है, फिर पैसे नहीं देते क्या? तो पैसे बोले सर डॉक्टर साहब थप्पी लगी रहती घर में, मेरे पास पैसे रुपए की, मतलब पैसा क्या खाना रहता है? तो मैंने बात क्या है, फिर तो तेरा घर बराबर नहीं है क्या? बोले डॉक्टर साहब ग्रीनफील्ड सोसाइटी में अंधेरी में मेरा 3 रूम किचन का फ्लैट है। तो मैं बोला बेटा तलाक क्यों ले रही है, तो बताओ पहले। बोले डॉक्टर साहब मेरा हस्बैंड है ना, उसकी बहन 6 महीने पहले 6 साल पहले गुजर गई, खत्म हो गई। हम कभी जुहू बीच पे घूमने जाते हैं, अचानक बहन की याद आ गई तो रोने लग जाते हैं जोर जोर से। सब पब्लिक जमा हो जाती है चारों तरफ, मेरे को बहुत ऑकवर्ड लगता है, फिर हमको भागना पड़ता है वहाँ से। हम पिक्चर देखने जाते हैं, कोई सीन आ गया इमोशनल फैमिली सीन, रोने लगा तो जोर जोर से सिस्कियाँ लेकर रोते हैं। रोने लगता तो हमारा पब्लिक बाहर करो तक। हम लोग खाना खा रहे हैं, याद आ गई रोने लग गए। हम लोग टीवी देख रहे, याद आ गए रोने लगे। डॉक्टर ने रोती सूरत देख देख के पटाल गई हूँ, अब मुझसे नहीं होगा, मैं तलाक ही ले लो। वो बोला बेटा एक काम करो, उसको लेकर आओ। तो बोला आए वो माँ के पास, मैंने लेके आओ। बोला 11 बजे का अपॉइंटमेंट रात को, मतलब 11 से 1 तक उनका यही किया तो आपके लोगों के साथ सेम, नथिंग एल्स, कोई डिफरेंट कुछ भी नहीं किया मैंने, सेम चीज यहाँ तक लाया। 3 महीने के बाद फरीदा मेरे पास आती, अंकल मैं थोड़ा हेडेक हो रहा था, ठंडी लग रही थी, मैं समझा मलेरिया तो नहीं, यहाँ पर मलेरिया मच्छर बहुत हैं। और बैठो बेटा कैसे हो, बाकी सब ठीक ठाक है? अब कैसे, अब तो यू मस्ट बी हैप्पी पर्सन। तलाक कितनी तारीफ कर दी बेटा आप लोगों ने? तुम तलाक वो काय के लिए नहीं, अब तलाक लेने वाली थी ना लास्ट टाइम जब आई थी, तब अपने अपॉइंटमेंट दिया था। हो फिर वो हंसी, वो बोली अंकल आपको बोलना भूल गई एक बात, उस दिन जो 11 बजे से 1 बजे तक आपने जो उसको भी 9:1 लिया था, उसका मेरा हस्बैंड आज तक नहीं बोला। तलाक कैंसिल। रियल स्टोरी, रियल स्टोरी। A case of heart problem being treated in Mumbai hospital, Bombay hospital. बॉम्बे हॉस्पिटल ट्रीटमेंट डॉक्टर बीके गोयल के हाथ पे चालू है, 9 महीने से ट्रीटमेंट चालू है, दर्द कम नहीं हो रहा, सब ट्रीटमेंट हो गया, जितनी टेस्ट होती सब हो गई।
मेरे पास लेके आता है। बाकी सब छोड़ दीजिए, मैंने स्टोरी जो भी है वो सब पता लगाने के बाद पता चला कि उसकी 10 महीने पहले फैक्ट्री जल के राख हो गई। 9 महीने से तक मैं बोला मैं तो ये आगे मैं अपना स्टार्ट किया। सबसे पहले तो ये किया, बाद में मैं बोला मैं ब्रेक लेता हूँ, मैं 2 मिनट जाके आता हूँ, पानी पी के आता हूँ, जब तक तुम 9:1 लिखो। मैं लौट के आया तो बोलता डॉक्टर साहब बहुत अच्छा हो गया। बोला क्या अच्छा हो गया? अरे मेरी फैक्ट्री जल गई, अच्छा हो गया। बोला फैक्ट्री जल गई, अच्छा हो गया? क्या अच्छा हो गया भाई इसमें? तो डॉक्टर साहब सबसे पहले मेरी फैक्ट्री जल गई, वो टपरी में थी। तो बाप दादों के जमाने से टपरी में थी, टपरी की फैक्ट्री जला लिया था, मोटी फैक्ट्री मारना डोंट मारा। दूसरा क्या? दूसरा मुझे आता क्या मशीन्स होते हैं ना सगळ्या जुन्या मशीन्स आणि पब्लिक हे तुम्हाला माहित नाही डॉक्टर लेबर प्रॉब्लम किती असतो माहिती है? अभी मैंने सोचा है सब ऑटोमेटिक मशीन लगा दूंगा गाड़ी में, ऑटोमेटिक मशीन। नंबर 3 बोले कि ये जो बैंक वाले है ना पहले पैसा नहीं देते थे, 10-10 बार चक्कर मारो उनके पीछे जाओ। अभी जब धंधा बंद है मेरा, हमारा बहुत बड़ा बिजनेस था, अब बैंक वाले पीछे पड़े, 3 बैंक वाले, अरे मानता उतना पैसा ले जल्दी चालू करो तुम्हारा धंधा। आई सेड वेरी नाइस। नेक्स्ट पॉइंट, वो बोले हमारे जो कस्टमर हमारा आइटम जो है मोनोपोली आइटम है, लकड़ी के खिलौने बनाते, 4 बड़ी सिटीज में जाता है और एक्सपोर्ट मटीरियल है। तो अभी कस्टमर्स के फोन आते हैं कि तुम चाहिए तो 6 महीने का एडवांस ले, पहला क्रेडिट चाहिए था, बोलते एडवांस ले, माल जल्दी दे। आई सेड वेरी नाइस। एंड नेक्स्ट पॉइंट, वो बोले डॉक्टर साहब मेरे जो बच्चे आसमान में उड़ते थे ना जमीन का, पहले ऐसा पैसा खर्चा करते जैसे आराम का पैसा है, और अभी जो है बहुत जिम्मेदार हो गए। आई सेड बस I know they have understood this problem. एक दिन फोन आता है वहां से, मैं काम करते रहता हूँ, पेशेंट देखता हूँ, फोन आ गया वहां से, बोले डॉक्टर पहचाना क्या? पहला क्वेश्चन यही आता, पहचाना क्या? मैं बोला पेशेंट चेक कर रहा हूँ, कुछ क्लू दो यार। तो देखिए मैं आपके पास मुरादाबाद से आया था, बॉम्बे हॉस्पिटल। अरे मैं बोला अशोक कैसे बेटा? बोले डॉक्टर मैं अच्छा हूँ अभी, और मैं आपको बताने जा रहा था कि मैंने फैक्ट्री मेरी बन गई है। मैंने बोला छोड़ यार, तबीयत कैसी है? बोले तबीयत तो डॉक्टर साहब मैं जब से आपके पास आया था ना, मैं ये बोलना भूल गया है, जब से आपके पास से गया हूँ मेरा चेस्ट पेन बंद हो गई, मेरी चेस्ट पेन बंद हो गई। उसके बाद मैं फैक्ट्री के काम में लगा रहा हूँ, मुझे भूल गया फोन करने का। सर मैं सॉरी बोलता हूँ, और अगले महीने फैक्ट्री चालू हुई, आप आएंगे ना सर? फ्रेंड्स द रियल स्टोरी। मेरे पास पेशेंट आया, उसको 100% ब्लॉक है एक आर्टरी में, कॉर्नरी आर्टरी। मैं बोला मैं कर दूंगा ठीक, उसको एंजियोप्लास्टी बोला मैं ठीक कर दूंगा। मैं बोला ये 100% ब्लॉक नहीं मारेगा, लेकिन ये टेंशन से दूसरी आर्टरी जो सिकुड़ जाएगी ना इसी, वो खलास कर देगा। मैंने उस पर ढीला कर देता हूँ, मेरा ये काम है। Get the point? Okay, so friends, इसको मैंने न जाने कितने इसमें यूज किया है। हमारे पास समय कमी होने की वजह से, नहीं तो मैं नॉर्मली हर वर्कशॉप में लोगों से करा के देता हूँ, उनके अपने जो सबसे डीप प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें करा के देता हूँ। उस प्रॉब्लम्स होती तो हम लोग फॉरन सॉल्व कर देते हैं, चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। बट वी आर नॉट गोइंग टू डू, लेकिन इसको आप लोग घर में जाके होमवर्क के रूप में कीजिए। टेक योर एनी प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम आपको सबसे ज्यादा सताती है, कोई भी चीज ले लो सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करती है, उसको लिख लीजिए प्रॉब्लम ये, इसका डिस्टर्बेंस मेरा, कोई भी घटना जीवन में हुई होगी लिख लीजिए, और उसमें 9 अच्छा क्या हुआ। दोस्तों हमारे ये वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाना न भूलें, जिससे आप हमारे वीडियो समय पर देख सकें। और दोस्तों यदि कोई आपके सुझाव हों तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालिए, जिससे कि आने वाले समय में हम और बेहतर वीडियोस आपको पेश कर सकें। और ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।